आप मोदी जी को भी देखिए, वो भी वडनगर रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की टपरी लगाते थे। तो आप मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप मोदी जी से ये पूछते हैं, आप सेब काट के खाते हो कि मुंह से चबा कर खाते हो? तो आप उससे पूछते, आप ये ऐसे बेतुके सवाल करने के बजाय आप इनसे इनका दर्द पूछ के, क्या आप जब लगाते थे तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? કે લોકો અવારનવાર આના માટે લેખિતમાં અને ઓનલાઈન મેલ કરી અરજીઓ કરીને આની રજૂઆત કરે છે, જેના हिसाबे આ ડ્રાઈવ ત્યાંથી કરવામાં આવી હતી। लोग गाली गलौज कर रहे थे और हमको माल तक निकालने नहीं दिया। जिस तरीके से हम लोगों ने मतलब छीना झपटी करके हमने अपना माल निकाला उसमें से बराबर, और उस तरीके से माल निकाला हम लोग, नहीं तो वो लोग निकालने दे ही नहीं रहे थे। को जो आग लगी वो घर के ही चिराग से लगी है। तो जो लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, जैसा जना पापा ने कहा कि आप किसी का लुकमा छीन नहीं सकते, आप किसी को लुकमा खिला नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लुकमा छीनने की कोशिश ना करें। आर गुजरात न्यूज़માં આપનું સ્વાગત છે। આપણે આવી પહોંચ્યા છે ફતેહવાડી ટીપી 85 રોડ ઉપર। તમે જોઈ શકો છો કે મારી પાછળ અહીંયા કાલ સુધી અહીંયા ગરીબ લોકો પોતાના પથારા લગાવીને ગુજરાન ચલાવતા હતા, પણ અહીંયાના કોર્પોરેશન દ્વારા આ લોકોને હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે અને આગળ રમજાન મહિનો આવી રહ્યો છે, તેમ છતાં આ ગરીબ લોકોને રોજગાર છીનવી રહ્યા છે અને આ આખા રોડ ઉપર જેટલા બી રોડ ઉપર લોકો ધંધા કરે છે એ લોકોને હેરાન કરવામાં આવે છે। અને જુવાપુરા મેઇન રોડ ઉપર જે દુકાનોનું કટિંગ કરવામાં આવે છે, કોર્પોરેશન દ્વારા જે ડિમોલેશન દૂર કરવામાં આવે છે, તે જગ્યા ઉપર પણ જે લોકો રોડ ઉપર ધંધા કરી રહ્યા છે, જેમની દુકાનો તૂટી ગઈ છે, એ લોકોને પણ કોર્પોરેશન દ્વારા હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ આખી ઘટનાને લઈને અહીંયાના સ્થાનિક કોર્પોરેટર જૈનબ શેખ આપણી જોડે જોડાઈ ગયા છે, એમની જોડે વાત કરીશું। રહીશ સૈયદ, અમદાવાદ। જેના બાબા શું કહેશો, જો જુવાપુરા મક્તમપુરા વિસ્તારમાં જે કોર્પોરેશન દ્વારા જે સ્થાનિક લોકોને દબાણ દ્વારા દૂર કરવા હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે? અસલામુઅલૈકુમ, હું ઝૈનબ શેખ, કોર્પોરેટર જુહાપુરા મક્તમપુરા વોર્ડથી। અત્યારે પાછલા ઘણા દિવસથી આપણે જોઈએ છીએ કે જે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી રહી છે, એમાં કાલે અહીંયા ટીપી 85 વાળા રોડ પર બી દબાણો હટાવવામાં આવ્યા અને એ દરમિયાન મને મેસેજ મળ્યા અને મેં હાજર થઈને વસ્તુને સોર્ટ આઉટ કરવાની કોશિશ કરી, એ વસ્તુને રોકી અને ડેપ્યુટી કમિશનર એસ્ટેટ પાસે જઈને અને અધિકારીઓને મળીને મેં રજૂઆત કરી પબ્લિક વતી કે આ કેમ થઈ રહ્યું છે વારંવાર આવી રીતના। બીજી બધી ઘણી જગ્યાઓ પર બી બજાર હોય જ છે લોકો માટે, લોકલ પબ્લિક માટે, તો આ વિસ્તારમાં કેમ? તો ત્યાંથી મને જાણવા મળ્યું છે કે લોકો અવારનવાર આના માટે લેખિતમાં અને ઓનલાઈન મેલ કરી અરજીઓ કરીને આની રજૂઆત કરે છે, જેના હિસાબે આ ડ્રાઈવ ત્યાંથી કરવામાં આવી હતી। ખાલી આ મુસ્લિમ વિસ્તારને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યું છે, કેમ આવું? ના, એવું નથી। અહીંયાના લોકલ લોકો છે જે આ મેસેજ કરે છે, ત્યાં લેખિતમાં અને મેલ કરે છે। જે બી લોકલ છે, હું આપના માધ્યમથી બી એમને એક રજૂઆત એ લોકોને કહેવા માગું છું કે જે ગરીબ લોકો છે, જે 200-500 કમાઈને પોતાના ઘરમાં નાના બચ્ચાઓને પાલતા હોય, એ લોકો પર રહેમ કરો। એવી રીતની અરજીઓ કરીને એ લોકોને આપ લોકો જે એક નિવાલો ના આપી શકતા હો તો કોઈના મોઢાના નિવાલા ના છીનાય અને લોકો પર રહેમ કરાય। તો આવી અરજીઓ કરીને, હા, આપ લોકોને કોઈ વસ્તુ થતી હોય કે આ લોકોથી કોઈ કનગળત હોય તો અમે લોકો છીએ, આપ લોકો અમને જાણ કરો તો અમને જે બી કનગળત હશે એ લોકો દ્વારા આપણે મળીને એનું સોર્ટ આઉટ કરીશું ઇન્શાલ્લાહ। પણ આવી રીતે કોઈ લોકોને પરેશાન કરવામાં ના આવે। અહીંયાના જેટલા બી રોડ પર ધંધા કરે છે એ લોકોને કોઈ જગ્યા આપવાની માંગણી કરશો તમે? જી ઇન્શાલ્લાહ। અત્યારે અમારે ત્યાં જેટલા બી અહીંયા વેન્ડર્સ છે બધા જોડે વાત થઈ ગઈ છે, બધાનું અમે ઇન્શાલ્લાહ મળીને એમને લાયસન્સ આપવામાં આવે અને એમને કોઈ પરમાનન્ટ જગ્યા બજાર કરી આપવામાં વેન્ડર એક્ટના તહત। અને મોદીજી જ્યારે એમ કહેતા હોય કે ભજીયા રોડ પર વેચીને તમે તારા ગુજરાન ચલાવો અને રોડ પર બેસીને તમે, મારા ભારતમાં આવો માહોલ છે તો ત્યારે અમારી મક્તમપુરાની જનતાને કેમ અધિકાર નથી? આ લોકો ગરીબ લોકો છે, કોઈ 2 નંબરના ધંધા, દારૂ, જુગાર એવું કોઈ નથી કરતા અને જ્યારે બેરોજગારી વધશે, આ લોકોના ધંધા જશે તો આ લોકો કઈ રીતના બચ્ચાઓના પેટ ભરશે? તો પછી કોઈ આ આપણું કાયદા વ્યવસ્થા ખોરવાશે નહીં? તો સરકારની બી જિમ્મેદારી છે અને આ લોકોને જે વ્યવસ્થિત તરીકે એમનું રોજીરોટી રડી શકે એના માટે જગ્યા અને લાયસન્સ આપવાની, અને એની રજૂઆત અમે ઇન્શાલ્લાહ આવનારા દિવસોમાં કરવાવાળા છીએ ને ઇન્શાલ્લાહ આના પીછે બરાબર મહેનત કરીને અમે કોશિશ કરીને આ લોકોને સ્ટેબલ જગ્યા પર સ્થગિત કરવા માટેની કોશિશ ચાલુ છે અને કરીશું ઇન્શાલ્લાહ। અને મેન રોડ ઉપર જે અંબર ટાવર પાસે જે મેન રોડ ઉપર જે લોકો જગ્યા રોકીને બેસ્યા છે એ લોકોને તમે શું અપીલ કરશો જેના લીધે લોકોને ટ્રાફિકથી હેરાન થાય છે? જે બી 4 રસ્તા પર લારી ઉપર જો લગાવે છે રોડ ઉપર, મેન રોડ પર જે આપણે અંબર ટાવર વાળું જે મેન રોડ છે સરખેજથી જુહાપુરા તરફ જાય છે, એ લોકોને બી હું અપીલ કરીશ કે એવી જગ્યાઓ તમે તમારી ફૂટપાથ પર જે બી ધંધો કરતા હોય સાઇડમાં કરો,
એક તરફ એક લાઇનમાં કરો, એક તરફ રહીને કરો કે બધા જ ડિસ્ટર્બ ના થાય, ટ્રાફિક ડિસ્ટર્બ ના થાય અને ટ્રાફિક પોલીસવાળા બી ડિસ્ટર્બ ના થાય અને લોકો શાંતિથી અવર જવર કરી શકીએ. હવે એના માટે અમે એક યુનિયન કરીને ગ્રુપ બનાવીને લોકોને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીશું અને જે ખોટી રીતના દબાણ થઈ રહેલા છે એ લોકોને બી હું કહેવા માંગુ છું કે એવું કોઈ દબાણ ના કરો કે જેનાથી લોકો હેરાન થાય અને ટ્રાફિક જામ થાય. ટીપી 85 રોડ પર ઘણા પાર્ટી પ્લોટ આવેલા છે, એમના લીધે પણ અહીંયા ટ્રાફિક જામ થાય છે, તો એ લોકો ઉપર કેમ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવતી? કોર્પોરેટર શું સાચી વાત અત્યાર સુધી જે બી જોવામાં આવે છે અહીંયા જે બી પાર્ટી પ્લોટવાળા હશે ને એમના લીધે એવું થતું હશે તો એના બી કમ્પ્લેન અમારી પાસે આવશે. અમે એ લોકોને બી જાણ કરીશું કે અગર તમારા લીધે આ થતું હોય તો એ લોકોને બી અમે પર્સનલી મળીને કહીશું કે આ રીતનું ના કરાય અને એનું સોર્ટ આઉટ કરે અને ટ્રાફિક ના થાય અને જે બી પાર્કિંગ હોય છે એના માટે વ્યવસ્થિત જે બી હોય આયોજન કરવામાં આવે. आपका नाम? मुस्तकी। कल क्या हुआ था? कल अचानक मतलब पुलिस के साथ में जो दबान वाले की गाड़ी जो आई बराबर, उन लोगों ने एक साथ हमला बोला और इस तरीके से कि मतलब हमने उनको बहुत आजीजी करी कि सर हमको अपने आप गल्ला ले जाओ, लारी ले जाओ, लेकिन हमारा माल तो निकालने दो. लेकिन उसके लिए भी वो उनके साथ में जो उनके कर्मचारी जो होते हैं वो लोग गाली गलौज कर रहे थे और हमको माल तक निकालने नहीं दिया. जिस तरीके से हम लोगों ने मतलब छीना झपटी करके हमने अपना माल निकाला उसमें से बराबर, और उस तरीके से माल निकाला हम लोग. नहीं तो वो लोग निकालने दे ही नहीं रहे थे, जब बोले नहीं भर दो बोले, इस तरीके से मतलब. तो यानी ये हम लोग जो धंधा कर रहे हो बिल्कुल रोड से बिल्कुल दब के अंदर, ताकि कोई इशू ना हो, कोई तकलीफ ना हो. या आप लोग देख सकते हो पूरा रोड बराबर, हम जो फुटपाथ है फुटपाथ से भी बिल्कुल 5 फुट अंदर छोड़ के हम धंधा करते हैं ताकि आवाम को तकलीफ ना हो और चलने फिरने वालों को तकलीफ ना हो बराबर. और हमारे इधर जो दबान जिस तरीके से कल हादसा हुआ और जिस तरीके से इन लोगों ने हमला बोला है वो चीज़ की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है. अगर ट्रैफिक होता है तो हमको पता है कि भाई ट्रैफिक होता है सबको तकलीफ पड़ती है, हर इंसान को. अंबर टावर पे एक इशू है, एक प्रॉब्लम में चल रहा है भाई कि अभी जो ब्रिज का काम होने वाला है उस हिसाब से जो भी के चलने फिरने वालों को तकलीफ पड़ती है. तो एक बार अगर वहाँ पर तुम इस तरीके से करते हो तो समझ में आता है, लेकिन वो भी तरीका ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे कर्मचारी गालियाँ बोल रहे हैं. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. हम तुम्हारे साथ सपोर्ट, हम खुद तैयार है. अगर जो दबान के साथ में जो भरने वाले जो मजदूर होते हैं वो मजदूर लोगों ने यानी फुल दादागिरी के साथ में, तो ये तुमको दादागिरी का पावर किसने दिया भाई? जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारा माल निकाल ले, हमको माल निकाल ले दो, तुम गल्ला ले जाओ, तो तुम गालियाँ बोल लो और निकालने नहीं दे रहे हो. और आपकी मदद कोई स्थानीय नेता कोई आया आपकी मदद के लिए? हमारी मदद के लिए हमारा जब सामान भर गया उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में हमारे कॉर्पोरेटर जैनब बेन शेख उनको पता चला बराबर, वो आए. फिर उन्होंने आने के बाद में वो साहब से बात की और उस गाड़ी को वहीं से फिर रवाना किया और समझाया उनको कि भाई तुम यहाँ पे या कोई मतलब ही नहीं है, तुम दबान जो यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हो पुलिस के साथ में, प्रोटेक्शन के साथ में, तो ये उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है बराबर. उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करी और फिर उसके बाद में वो गाड़ी को वहाँ से वापस रिटर्न किया और फिर वो गाड़ी यहाँ से गई. तो जो जिस तरीके से कल जो मामला यहाँ पर बना वो यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. दबान इतनी स्ट्रिक्ट यहाँ पर आवे या उसको बुलाया जावे ऐसी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. हम लोग इस तरीके से धंधा नहीं करते कि किसी को तकलीफ पड़े. हाँ, इंसान का शरीर का एक अंग खराब होता है तो अंग को काटा जाता है, उसका गला नहीं काटा जाता. समझ लो, आप सोच रहे इंसान को खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं. जहाँ सड़ता है वही काटा जाता है. तो जो कोई अगर ऐसा लगता है आपको कि भाई हाँ ये इशू है तो वो इशू को खत्म करो ना. तुम सबको खत्म कर रहे हो. यहाँ पर 100 पेट पलने वाले हैं बराबर, एक के लिए आप सबको 100 पेटों को खराब कर दोगे. समझ रहे हो, सब मेहनत करने वाले हैं. आप आपको लगता है कि भाई चीज़ से इशू होता है, उसको तुम करो तो समझ में आता है कि भाई हाँ ये चीज़ है भाई, ये यहाँ पर ये तकलीफ देने वाली चीज़, इससे इशू होता है, इससे तकलीफ होती है. हमारी मांगनी ये है कि भाई जो दबान यहाँ पर आई, जो जिस तरीके से कल आई, वो उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. अगर आप लोग आते हो, आपको ऐसा लगता है, हमारे कॉर्पोरेटर से बात करो, हमारे कॉर्पोरेटर से हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमको बताएंगे. अगर हमारी जो भूलेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम आप बोलोगे हमारी तरफ से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे कि हमारी तरफ से कोई इशू हो रहा है, कोई ट्रैफिक हो रहा है. पालन करो. हाँ, हम पालन करेंगे. हमारी तरफ से कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर, उसकी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं. हाँ. आपका नाम? इसामुद्दीन शेख. आप किस टाइप की गाड़ी लगाते थे? मेरे फल फ्रूट का धंधा है भाई. और कल क्या हुआ? कल दबान वाले आए और बहुत जनों को हैरान किया, परेशान किया. सब हम कायदे से अंदर ही खड़े रहते हैं. हाथू रह के ने हैरान करने वाली बातें होती है, दूसरी कोई बात नहीं है. अब हमारी वजह से कोई तकलीफ होती है तो अब जैनब पापा शेख है हमारे, उनको बोलो, वो हमसे बात करेंगे. हमसे तकलीफ है तो हम हटियाने को तैयार है, लेकिन फिर ऐसा भी करो कि हमको भी कोई जगह दो ऐसी कि हम बाजार बना के वहाँ धंधा कर सके. हम भाड़ा देने के लिए तैयार है. क्या बोलना चाहोगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा शासन, आपके मीडिया के आपके माध्यम से
शासन प्रशासन को कि अगर कोई ऐसा इश्यू है, सामाजिक इश्यू है, ये है, तो आप ये छीना झपटी वाली बात मत कीजिए। क्या आके आपने रेड कर दी और सबका सामान जब्त करके ले गए, ये कोई तरीका नहीं है। आप लीगल वे में आइए, पहले यहाँ के सामाजिक आगेवान है, पॉलिटिकल लीडर है, उनसे बात कीजिए, उनके थ्रू आप बात को आगे फॉरवर्ड कीजिए और आपको जो कार्यवाही करनी है तो उसके लिए तुम उनको आगाह कीजिए और उसका कोई रास्ता निकालिए। और शासन प्रशासन से ही कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेंडर पॉलिसी बनाई हुई है तो उसका अमल आप नहीं कर रहे हो, उसके अंदर भी आप पक्षपात कर रहे हो। हम देख रहे हैं दूसरे एरिया में, यहाँ पे एजी हाईवे पे नेहरू नगर वालों को, उसके अलावा आपने रविवारी में भी लोगों को वेंडर पॉलिसी के एक्ट के तहत आपने उनके लिए भी अलॉटमेंट किया है। तो देखो, हमारे अहमदाबाद शहर के अंदर स्ट्रीट वेंडरों की तादाद ज़्यादा है और ये इसके बारे में शासन प्रशासन को सोचना पड़ेगा और पॉलिसी के तहत या तो आप उनको प्लॉट अलॉटमेंट करके उनको खड़े दीजिए और उनको उनके रोजी रोजगार का प्रबंध कीजिए। और आप मुद्रा योजना लाते हैं कि स्ट्रीट वेंडर को, फेरिए को हम 50,000 लाख की लोन देते और हम उनकी मदद करते हैं, ये सिर्फ आप सहानुभूति लेते हो पेपर में ऐड देके। लेकिन जब ये 50,000 लाख रुपए के लिए लोन लेने के लिए जाते हो तो आप इतना पेपर वर्क इतना बताते हो कि वो सामने वाला ये सब सुन के ही वापस लौट के कभी आता नहीं है। तो मैं यूँ कहता हूँ कि आप इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन हल्का कीजिए और ये लोग जो इधर से ऊँची पाची के ला के अपना धंधा पेट गुजारा करते हैं तो इसमें भी आप अपनी हिस्सेदारी करिए, मानवता का बेस्ट उदाहरण पूरा कीजिए। और जैसे आप जो भी है, अभी बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी वाले मोदी की दुहाई देके लोगों से सहानुभूतियाँ बटोरते, तो आप मोदी जी को भी देखिए, वो भी वडनगर रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की टपरी लगाते थे। तो आप मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप मोदी जी से ये पूछते हैं, आप सेब काट के खाते हो कि मुंह से चबा कर खाते हो? तो आप उससे पूछते, आप ये ऐसे बेतुके सवाल करने के बजाय आप इनसे इनका दर्द पूछ के, क्या आप जब लगाते थे तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, तो वो मोदी जी ये इनका गरीबों का दर्द बताएंगे। जब मोदी जी लोगों से सुर्खियाँ बटोरते कि चाय वाला भी बड़े ओहदे पे प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये जो है श्रेणी में, चाय वाले की टपरी की श्रेणी में आते हैं ये जो स्ट्रीट वेंडर है। तो आपके मोदी जी का दर्द उनसे सुनना चाहिए और उनके दर्द का सहभागी बन के इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो मैं ये बात कहूँगा कि भाई इनके लिए कोई बीच का रास्ता निकालिए, स्ट्रीट वेंडर होना लाजमी है। देखो, मैं 2012 की बात करता हूँ, अरब एक कंट्री है ट्यूनेशिया, वहाँ पे अरब स्प्रिंग यानी एक बगावत हुई थी, उसमें भी एक फल वाले व्यापारी को कॉरपोरेशन में ट्यूनेशिया के अंदर परेशान किया गया था। वो अपने जलद प्रवाही अपने ऊपर डाल के उसने आपको आग के हवाले कर दिया और पूरा ट्यूनेशिया के अंदर तख्ता पलट हो गया। याद रखो, ये छोटी सी बात थी, फ्रूट का व्यापारी था। ट्यूनेशिया अफ्रीकन एक अरब कंट्री है, वहाँ का उसको वहाँ की कॉरपोरेशन ने परेशान करने की बजाय पे उसने मजबूर होके अपना आप को उसने खुदकशी कर ली। उसके बाद अरब स्प्रिंग हुई, यानी अरब के अंदर तख्ता पलट हुई और बगावत का सूर उठा। तो ये बात, इसको मामूली मत समझिए, लोगों के अंदर बगावत का सूर उठेगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा देश मोहब्बत से चलेगा, एकता का पैगाम देना है, इसी के ऊपर तो हमारी संविधान की नींव रखी गई है। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई आप लीगल वे में जो भी करना है, हमारे सामाजिक आगेवान पॉलिटिकल लीडर को बीच में लेके अपना फरमान, अपना जो भी आगे का जो मुसद्दा है उसको उसको अमल में लाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मकतमपुरा जुआपुरा से जुड़े हुए नेता हो, आप क्या कहना चाहोगे? ये गरीब लोगों को हैरान करना चाहता है। देखिए, कल ये जो पूरा मामला हुआ उस टाइम पे मैं दक्षिण पश्चिम जोन के ऑफिस पे ही था और जैनब पापा का मेरे पे फ़ोन आया और वो रिक्शा में बैठकर यहाँ पे आए और वहाँ से मोमिन पार्लर से जो एस्टेट अधिकारी वगैरह थे उनसे बात करके जो गाड़ी वापस वाली, देन मुझे वहीं रोका गया दक्षिण पश्चिम जोन के ऑफिस पे और जैनब पापा वहाँ आए और वहाँ आके कम से कम 1.5 से 2 घंटा हर अधिकारी से हमारी वहाँ पे चर्चा हुई। और चर्चा में जो चीज़ें हमको देखने मिली मैं यहाँ पे मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन ये घर को जो आग लगी वो घर के ही चिराग से लगी है। तो जो लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, जैसा जनाब पापा ने कहा कि आप किसी का लुकमा छीन नहीं सकते, आप किसी को लुकमा खिला नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लुकमा छीनने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत ये जो आता है यहाँ पे बराबर, और ये हमको जो करना चाहिए तो हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से भी आगे रजूआत की है, आगे बात करेंगे कि इनको लाइसेंस दिया जाए, यहाँ पे एक जगह दी जाए ताकि
ये जो रोज़ का कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ ना हो। और जो ट्रैफिक ड्राइव अभी आप लोग चला रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले, जिस किसी की भी अर्जी से चला रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रैफिक ड्राइव जो है वो मेन जो मामला है ट्रैफिक का मेन रोड के ऊपर है। तो रोड पे भी जो लारी लगाने वाले रोड के ऊपर जो लारी लगाते हैं उनके वजह से भी जो ट्रैफिक होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रोड के ऊपर लारी न लगाएं, अंदर के हिस्से में लगाएं ताकि ट्रैफिक का मामला ना हो। और ट्रैफिक के नाम पे फिर हमारे एरिया को बदनाम ना किया जाए कि यहाँ पे ट्रैफिक था इसलिए हमको ड्राइव करनी पड़ी और इसलिए हमको दबान लाना पड़ा, ट्रैफिक वालों की अर्जी आई तो हमको आना पड़ा ट्रैफिक वालों के साथ और गरीब लोगों की लारी गल्ले उठाने पड़े। तो ये जो मामला है सब एक दूसरे से वैसे तो कनेक्टेड ही है, तो ठीक है। मामला आप बोल रहे हो तो ट्रैफिक के लिए जो ट्रैफिक का जो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो 4 रस्ते पे पुलिस वाले तो होते हैं। ये 100% यही मामला है कि ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले 4 रस्ते पे होने चाहिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिनों से ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे हैं बराबर। और ये जो मामला है तो ट्रैफिक से कनेक्टेड भी है, लेकिन जो ये लारी उठाने वाला गरीबों का मामला है वो मामला ऐसा है कि इन लोगों का जो 200-500 रुपये रोज़ कमाते हैं और रोज़ घर पे ले जाते हैं उनको हैरान न किया जाए। उसके लिए जो जितना बन पड़ सकता था कल हमने किया है, आगे भी करेंगे। कोई इसमें हमको राजनीति नहीं करनी है। हमारा मकसद ये है कि इनका इश्यू जो सरकार के साथ का है, जो कंप्लेंट्स जाती है यहाँ पे लोगों की, मैं नहीं बताना चाहता, मैं जानता हूँ 15 लोगों के नाम के साथ, फ़ोन नंबर के साथ, कि आप लोगों ने इन लोगों के लिए, इनका पेट काटने के लिए जो कंप्लेन की है, ठीक है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं उन लोगों के नाम नंबर को बाहर दूं, ठीक है। मेहरबानी करके आप ये सब चीज़ें बंद करो। और ये गरीब है, इनका मत, अल्लाह सबकी रोज़ी देने वाला अल्लाह है, लेकिन आप किसी की रोज़ी छीनने के लिए ज़रिया मत बनो, आप उसका कारण मत बनो, आप किसी की रोज़ी मत छीनो मेहरबानी करके, ठीक है। तो मेहरबानी करके हम बंद हैं, हमारा मुंह बंद है, बंद मुट्ठी है, बंद ही रहने दो। आपको तकलीफ़ है, आगे रमज़ान महीना आ रहा है, ठीक है। ये लोग बेचारे 500 रुपये कमाते हैं यहाँ पे, फ्रूट वाले, कि भाई पानी पूरी वाला हो या फिर कोई केले वाला या XYZ सब्ज़ी वाला, तो वो जो इंसान है जो 500 रुपये कमा के लेके जाता है यहाँ से, ठीक है, वो उसके घर के बच्चों को पालता है। वो कि करोड़पति इंसान नहीं है कि लाखों के घर में नहीं जाता, भाड़े के लारी भाड़े से लेके आता है, ब्याज पे पैसा लेके बेचारा धंधा करता है यहाँ पे, और आपकी अर्जियों के वजह से यहाँ पे उनका माल उठ जाता है, ठीक है। तो ये आप क्यों किसी गरीब की बद्दुआ और हाय ले रहे हो, ठीक है। तो ये जो मामला है ये बहुत ही मतलब अफसोसजनक बात है कि हम हो हल्ला करते हैं, हम शोर शराबा करते हैं, हम यहाँ कर देंगे, हम वहाँ कर देंगे, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, लेकिन करता कौन है उसकी जड़ में तो जाओ, तब पता चलेगा कि ये करने वाले भी हमारे ही लोग हैं। आप समझे। तो ये चीज़ों को बंद किया जाए। मैं हाथ जोड़ के मुसलमानों से, अगर आप लोग मुसलमान हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि एटलीस्ट अल्लाह के रसूल की जो बातें हैं उस पर फॉलो कीजिए। ये गरीबों को परेशान मत कीजिए, अर्जियाँ बेकार में मत कीजिए एस्टेट को, ठीक है। और इन लोगों को यहाँ धंधा करना दीजिए। रही बात लीगली कि अब आगे जो करना है, तो वो जो प्रोसीजर है वो ज़ैनब आपा की तरफ से, हम MM पार्टी की तरफ से जो हमको करना है वो हम आगे करने ही वाले हैं, और उसकी प्रोसीजर चालू ही है। और इंशाल्लाह आप दुआ करिए कि हो जाएगा, तो एक अच्छे रिजल्ट के साथ हम लोग आपके सामने वापस दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा लगता है कि बरसाती मेढक की तरह जो निकल गए नेता की वजह से स्थानिक लोग, स्थानिक पब्लिक हैरान है? नहीं, पब्लिक बरसाती मेंढक की तरह वो अभी इश्यू ही नहीं है। बात ये है कि जब समझ नहीं पड़ती है तो पब्लिक को बरगलाओ मत। अब ठीक है, आप जनप्रतिनिधि जो होता है कॉरपोरेटर, वो किस लिए होता है कि सरकार और जो प्रजा है उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बीच में बात करने वाला होता है। तो जैसे वो भाई ने अभी लारी वालों ने बात की कि अगर सरकार को हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कॉरपोरेटर से कंप्लेन करिए। ऐसे ही हम भी कहते हैं कि आप लोगों को अगर कोई एस्टेट अधिकारी से या कोई भी ऐसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप सीधा अपने कॉरपोरेटर को कॉन्टेक्ट करिए। आप दो के बीच का रास्ता निकालना जिससे सरकार, उनका जो कायदा है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी कंट्रोल में रहे और इन लोगों का नुकसान भी ना हो। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इस चीज़ को सबसे पहले देखें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी, उसका भी भंग ना हो। और ये जो गरीब लोगों की लारी है यहाँ पे बराबर, जो ये धंधा कर रहे हैं, वो उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि हम दोनों पक्ष को साथ में लेके चले, उनमें समझौता कराए, वो इनको हैरान ना करे और इनके वजह से उनको हैरानगति ना हो।